Good morning, church family. We welcome you to our online service. I am Catherine. And I am Josh. Today, Pastor Moses is going to teach us on Ministry of Holy Spirit. आज हम ये सीखने वाले हैं कि जब हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने की अनुमति देते हैं तब वो कैसे हम पे गहरे प्रकाशनों को रिवील करता है। लेकिन इससे पहले हम वचन में जाएं, आइए हम आराधना करें। Good morning, church. We welcome you in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आइए हमारे साथ जुड़िए इस समय जब हम आराधना में बनते हैं। When we worship God right now, I just want you to bless the Lord. Hallelujah. परमेश्वर जो है वो आपकी और मेरी आराधना के लिए बाट जोड़ा है। Hallelujah. वो ठहरता है कि कब मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आएंगे और मेरी आराधना करेंगे, मुझसे प्यार करेंगे। Hallelujah. And music and songs are a way of worshiping our God, coming closer to God, drawing closer to God. So today, no matter who you are, no matter in what circumstance you are in, I invite you today that come, bring your offering of praise unto the Lord. Hallelujah. Bring the songs of adoration to the feet of God and see how He blesses you today. Hallelujah. Amen. Come on. Let's bless His name. Thank you, Jesus. Father, we worship you. Oh, Father, we worship you. आइए अपनी आवाज़ों को उसकी ओर उठाएं। कहें कि प्रभु जी धन्य हो तेरा नाम, धन्य हो तेरा नाम यीशु, धन्य हो तेरा नाम। Thank you, Jesus. No matter what happens, Lord, today I am here to bless your name. Jesus, I'm here to lift my heart to you. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. I'm gonna sing it again. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all
bless the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are blessed, oh God. Your name is blessed forever, Lord. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Oh, Father, we are here to bless you, Lord. We thank you that, Lord, this is the day that you have made. A day of sunshine, a day of blessings, oh God. A day of receiving your favor in our lives. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. We thank you for giving us this song that says that this is the day of sunshine. And I'm one step ahead. Hallelujah. We are one step ahead in His favor to shine. Hallelujah. Today, God wants you to shine. Thank you, Jesus. Oh, we bless you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Come on, let this song be a song of declaration by faith. Hallelujah. Of the favor that God has given to you and to me. Hallelujah. This is the day of sunshine. I'm one step ahead in His favor to shine. This is the day of sunshine. I'm one step ahead in His favor to shine. This is the day of sunshine. I'm one step ahead in His favor to shine. This is the day of sunshine. I'm one step ahead in His favor to shine. His strength in the valleys will make me stand, 'cause He upholds me with His righteous hand. His strength in the valleys will make me stand, 'cause He upholds me with His righteous hand. 'Cause Jesus is His name. Jesus is His name. He is the light and the way. He abides in me. I'll never go astray. Jesus is His name. He is the light and the way. He abides in me. I'll never go astray. Worship you, Jesus. You are the God of truth, Lord. The God of truth has a reason to walk me through. Every season He builds me up and makes His shrine. The God of truth has a reason to walk me through. Every season He's my shepherd. Jesus, the true vine. Jesus is His name. Jesus is His name. He is the light and the way. He abides in me. I'll never go astray. Jesus is His name. He is the light and the way. He abides in me. I'll never
Your goodness flows in my life, Lord. In all my ups and downs, in ups and downs, and all my highs and lows, and I will stand firm as His goodness flows. Come on, declare this. In ups and downs, and all my highs and lows, and I will stand firm as His goodness flows. Jesus is His name. He is the light and the way. He abides in me. I'll never go astray. Sing it again. Jesus is His name. He is the light and the way. He abides in me. I'll never go astray. Thank you, Lord. All hardships and torments will come to an end, because my journey is in the hands of God. Thank you, Jesus. We're going to declare this. Come on, each one of us. We belong to you, Lord. All hardships and torments will come to an end, because my journey is in His hands. All hardships and torments will come to an end, because my journey is in His hands. All hardships and torments will come to an end, because my journey is in His hands. All hardships and torments will come to an end, because my journey is. Come on, declare this by faith. All hardships and torments will come to an end, because my journey is in His hands. All hardships and torments will come to an end, because my journey is in His hands. Jesus is His name. He is the light and the way. He abides in me. I'll never go astray. Tell it to Him. Jesus is your name. Jesus is your name. You are the light and the way. You abide. You abide in me. I'll never go astray. One more time we cry. Jesus is your name. You are the light and the way. You abide in me. I'll never go astray. You abide in me, Lord. You abide in me. I'll never go astray. You abide, Jesus. You abide in me. I'll never go astray. We worship you, Lord. Jesus. Thank you for your name, Lord. You abide in me, Lord. Jesus, the true vine. I cling to you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, hallelujah. Lift up the name of Jesus. Thank you. Thank you for this uncountable blessings that flow in our lives, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Lord. Oh, Lord. Jesus. Oh, it's all about you. The God of love is in our midst today. Thank you, Jesus.
Thank you, Lord. It's all about you, Jesus, and all this is for you, for your glory and your fame. It's not about me, as if you should do things my way. You alone are God, and I surrender. it's all about you. Jesus, And all this is for you, for your glory and your fame. it's not about me, as if you should do things my way. You alone are God, and I surrender to your Jesus, lover of my soul, all consuming fire is in your gaze. Jesus, I want you to know I will follow you all my days. For no one else in history is like you. For the history itself belongs to you. Alpha and Omega, you have loved me, and I will share eternity with you. It's all about you, Jesus, and all this is for you, for your glory and your fame. It's not about me, as if you should do things my way. You alone are God, and I surrender. it's all about you, Lord. It's all about you. Jesus, and all this is for you, for your glory and your fame. It's not About me, as if you should do things my way. You alone are God, and I surrender to your ways. I surrender to your ways, to your ways. Jesus. I surrender To your ways, to your love. I surrender my all. I surrender to your ways. Jesus, I surrender to your ways. love you, I Lord. surrender to your ways. Jesus, thank you, Lord. प्रभु के प्यार में ऐसा पड़ जाए, उसके प्यार में दीवाने हो जाए, जैसा उसने हमसे प्रेम किया, हम भी उससे प्रेम करें. हालेलुया. And it's not by our might, not by our power, it's by the Spirit. So let's call on the Holy Spirit right now. पवित्र आत्मा को पुकारें. हो पवित्र आत्मा, आ और हमें सिखा कैसे प्यार करें प्रभु तुझसे. Take us to a higher level, Lord, to a deeper intimacy, oh God. Thank you, Jesus.
करूं, इतना प्यार करूं, प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, प्यार करूं, प्यार करूं, इतना प्यार करूं, प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझको सिखा कैसे मैं प्यार करूं, पवित्र आत्मा मुझको सिखा पिता से मैं प्यार करूं, फिर से एक बार उससे मांगे, पवित्र आत्मा मुझको सिखा कैसे मैं प्यार करूं, पवित्र आत्मा मुझको सिखा पिता से मैं प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, जैसे पिता ने जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, मैं बदले में प्यार करूं, जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, मैं बदले में प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, प्यार करूं, प्यार करूं, इतना प्यार करूं, come on love him, प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ,
you, Jesus. Surround us with your love, Lord. Yes, Jesus. Surround us with your love. This is the day to fall more and more in love with our Savior, our Jesus. हमारे यीशु के साथ और भी गहरे रिश्ते में बन जाए. Let's have that desire. As you are in the presence of God, with your hands lifted up and your hearts lifted up to Him. भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, लेकिन तेरे प्यार में और भी बढ़ जाऊं. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 9वें पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जव की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? ये बात चेले यीशु मसीह से कह रहे हैं कि इन 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना कैसे खिलाया जा सकता है। यही विचार कई बार आपको और मुझे भी परेशान करता है कि इस छोटी सी ऑफरिंग से, इस छोटी सी देगी से कैसे हम परमेश्वर के राज्य में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। पर आज की सुबह मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि आप किसको देते हैं। जब हम अपनी छोटी सी ऑफरिंग भी परमेश्वर के हाथों में लेके आते हैं तो परमेश्वर उसको बढ़ाने की कुव्वत रखते हैं। परमेश्वर उस छोटी सी भेंट से ना केवल आपको और आपके परिवार को ब्लेस कर सकते हैं, वरन एक बड़ी भीड़ को ब्लेस कर सकते हैं। उस बच्चे की तरह आज अपने मन को खोलिए और स्क्रीन पर दिए हुए डिटेल्स पे अपने छोटी सी ऑफरिंग को, अपनी धेकी को, जो भी परमेश्वर आपके मन में डालता है, बोइए और परमेश्वर आपके बोने को ब्लेस करेगा। ना केवल आपको, आपके परिवार को, पर बहुतायत से बहुत से लोगों को आपके कारण आशीष मिलने पाएगी। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं जहाँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मैं हूँ अटल, मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने, तोड़
खुदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे, बाहों में तेरे, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। हाय, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। जो वचन के भाग को, जो मुद्दे को आज हम देखने जा रहे हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री हमारे लाइफ में क्या करती है। याद रखना, बाइबल का वचन कहता है, प्रेरितों के काम की किताब इसके 2 अध्याय के 17 वचन में बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि वो अंत के दिनों में अपना आत्मा अपने लोगों पर उंडेलेगा। हम वो दिनों में हैं, हम अंत के दिनों में हैं जब परमेश्वर अपना आत्मा हमारे ऊपर उंडेलना चाहता है। क्यों परमेश्वर अपना आत्मा मनुष्य जाति पर उंडेलना चाहता है? क्या पर्पस है परमेश्वर के आत्मा के आने का? क्यों पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा मनुष्य के ऊपर में आया? वहां से चर्च के साथ पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा की संगति कलीसिया में क्या कर रही है? व्यक्तिगत जीवन में जिसके विषय में कहता 1 कुरिन्थियों 6वें अध्याय के 19 वचन में, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा के रहने का घर है। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर क्या कर रहा है? क्यों पिता उंडेल रहा उसे? पवित्र आत्मा हमारे अंदर घर करके रहकर इस देह में, इस जिंदगी में क्या करना चाह रहा है? क्यों यीशु मसीह यूहन्ना इसके 16वें अध्याय के 7वें वचन में अपने चेलों को देखकर कहता है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह का रखना नहीं मगर उसका जाना अच्छा है। क्यों यीशु मसीह इन बातों के विषय में कह रहा और कहता, जब मैं जाऊंगा तो वो सहायक, वो सत्य का आत्मा आएगा जो तुम्हें मेरे बारे में बताएगा, जो तुम्हें मेरे विषय में बताएगा। ये सारी बातों के विषय में जब मैं देख रहा था, मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, पवित्र आत्मा आपकी सेवकाई क्या है, क्या है, आप क्या करने के लिए आए? तब कई सारी चीजें हैं बाइबल में, विभिन्न जगहों पर लिखा है। जैसे रोमियो 5वें अध्याय के 5वें वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा आया है कि वो हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम उंडेल दे। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम उंडेलता है। फिर आया है कि वो यीशु की दुल्हन को तैयार करे। ये सारे ब्यूटीफुल पार्ट्स हैं पवित्र आत्मा के। मगर एक और विशेष बात की ओर मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहता, जिनको जिस बात की ओर इन दिनों में मैं एंजॉय कर रहा, मैं आनंद कर रहा और मैं प्रार्थना कर रहा पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा मैं भी इन चीज़ों को अनुभव करना चाहता हूँ, आप मुझे बढ़ाता लेकर चले। याद रखें, जब वचन आपके पास में आ रहा, किसी भी पल वचन के बीच में आप रुक कर प्रभु की
आराधना कर सकते हैं, आप वचन के बीच में रुक कर वचन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु ये वचन मेरे जीवन में पूरा कर। पवित्र आत्मा, ये जो बात अभी मेरे कान ने सुना है, मैं इसे मेरे लाइफ में पूरा होता हुआ देखना चाहता हूँ। आप याद रखना, पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री में ब्यूटीफुल पार्ट है जहाँ वो वर्ड को फ्लैश बनाता है, वो शब्द को शब्द जो देख नहीं सकते, अनसीन, ऐसे वर्ड को दिखने लायक बनाता है, देख बनाता है। उसी की सामर्थ्य से कुंवारी मरियम गर्भवती हो गई। पवित्र आत्मा के अद्भुत अनगिनत सुपरनैचुरल वर्क्स है जो मनुष्य के जीवन में वो पूरा करता है। और आज मैं प्रार्थना करता, जब ये वचन आ रहा, पवित्र आत्मा के कामों की शुरुआत आपके जीवन में होने पाए, आप अनुभव करने पाए। जो पवित्र आत्मा चाहता है पर्सनली, व्यक्तिगत आपके जीवन में करना, वो बातें आपके लाइफ में आरंभ होने पाए। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, गेट रेडी फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट। जब भी परमेश्वर वचन भेजता है, वो वचन सिर्फ सुनने के लिए या कानों की खुजली मिटाने के लिए नहीं भेजता, मगर परमेश्वर वचन भेजता है कि वो वचन आपके गूदे गूदे को चीरता हुआ भीतर में जाकर आप में बसने पाए, आप में वो वचन की सामर्थ नजर आने पाए, आप में वो वचन के कामों की परिपूर्णता नजर आने पाए। इसलिए मैं आपको इनकरेज करूंगा कि जब परमेश्वर का ये वचन आपके पास आ रहा, आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा ये वचन मेरे जीवन में पूरा कर। सो याद रखो, अब चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल मिनिस्ट्री में यीशु मसीह के साथ रहते हैं। यीशु मसीह को वो देख रहे गए। पहले बार जब यूहन्ना को छोड़कर 2 चेले यीशु मसीह के पीछे पीछे आए, तो वो 2 चेले और बाकी चेलों के पास जाकर कहने लगे, आओ आकर देखो, हमें मसीहा मिल गया है। क्या ये वही तो नहीं जिसकी हम राह देख रहे हैं? उसके बाद हम जानते हैं, नतानियल आके कहता है, क्या नासरत में से कभी कुछ अच्छा आ सकता है? नाना प्रकार की विचारधाराओं से चेले यीशु मसीह के पास में आते हैं और अब वो जानना चाह रहे यीशु मसीह कौन है। मगर ये सारी चीजों में जब वे जानना चाह रहे हैं, सडनली एक दिन यीशु मसीह को कानागांव की शादी में बुलाया जाता है। और जब कानागांव की शादी में इनवाइट किया जाता, तो वो उन्होंने अब तक यीशु मसीह के लाइफ से मिराकल्स को नहीं देखा था। मगर अब कानागांव की शादी में उसकी मम्मी दौड़ के आती है और बोलती है, बेटा दाखरस खत्म हो गया, कुछ कर। और हम जानते हैं, स्टोरी को शॉर्ट करने के लिए, यीशु मसीह ने उत्तम दाखरस पानी में से बना दिया। नाउ ये चेले जब उसको देखते हैं, तो मुझे ये दिखाई देता है, चेले आपस में मन में सोचते हैं, ये कौन है? उत्तम दाखरस बनने के लिए तो कई साल लग जाते हैं, तब जाके दाखरस उत्तम बनता है। मगर यीशु मसीह कैसे काम किया, एक झटके में उत्तम दाखरस बना दिया। जिस चीज को कई साल लगते थे, यीशु मसीह ने एक क्षण में बना दिया। और उस दिन उनको यीशु के काम का एक रेवलेशन मिला। ये बहुत साल जिन चीजों को लगता उसको एक क्षण में कर सकता है। ही इज ए माइटी पर्सनैलिटी। ये अद्भुत काम करता है। इस रेवलेशन में वो आगे चल ही रहे थे, तब सडनली एक दिन बाइबल का वचन कहता, वे नाव में होकर जा रहे थे और यीशु मसीह को उन्होंने नींद से जगाया और यीशु आंधी और तूफान को रोकने लगा। यीशु मसीह कहने लगा, आंधी रुक जा, और बाइबल का वचन कहता, आंधी रुक गई, थम गई, लहरें थम गए। तब ये चेले आपस में सोचने लगे, ये कौन है जिसकी बातें आंधी भी सुनती है? और आगे थोड़ा गए, यीशु मसीह एक दिन पानी पर चल के आ गया और उनके मन में आया, ये कौन है जो पानी पर चलता है? कहने लगे, निश्चय तू परमेश्वर का पुत्र है। उतना ही नहीं, और आगे चल के गए तो उन्होंने देखा यीशु मसीह ने नैन गांव में विधवा के बेटे को, मरे हुए बेटे को जिला दिया। यीशु मसीह ने याईर की बेटी को जिला दिया। ये देख के अचंभा करने लगे कि ये मरे हुए को भी जिंदा करता है। उतना ही नहीं, एक दिन उन्होंने देखा 5 रोटी 2 मछली से उसने हजारों को खिला दिया। इतने से भोजन से इतने हजारों में मल्टीप्लाई कर दिया। एक के बाद एक वो यीशु मसीह के कामों को देखकर अचंभा करते चले जा रहे थे। और यीशु मसीह के ये जो काम थे, ध्यान से सुनना, ये सारे काम पवित्र आत्मा के इन्वॉल्वमेंट में थे। पवित्र आत्मा से भर के यीशु मसीह के मिनिस्ट्री कर रखा था। और चेले लोग यीशु मसीह के मिनिस्ट्री के रेवलेशन को पवित्र आत्मा की सहायता से यीशु मसीह के कामों में पा रहे थे। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह के कामों के रेवलेशन को पा रहे थे। यीशु मसीह को वो जो देखते थे, वो यीशु था जो शून्य बनकर पृथ्वी पर आया था।
शून्य बन के, जिसके साथ वो उठते बैठते थे, सीने से चिपक कर बैठते थे, जिसके साथ खाते थे, जिसके साथ नेचुरल बातें करते थे, जिसके साथ समय बिताते थे, यीशु मसीह को अपने तरह देखने में वो यीशु मसीह को देख रहे थे, मगर सुपर नेचुरल कामों के रेवलेशन पा रहे थे। फिजिकली जीसस को देख रहे थे, मगर सुपर नेचुरल रेवलेशन कामों के चेले पा रहे थे पवित्र आत्मा की अगुवाई में। मगर ध्यान से सुनो, ऐसे समय जब चलते 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 आया, एक दिन लाजर को 4 दिन के मरे हुए जिंदा कर दिया। तब उन्होंने देखा 1-2 दिन एक पल का नहीं, मगर कई दिनों के बाद भी ये मुर्दों को जिला सकता है। उतना ही नहीं, मगर यीशु मर गया। मरने के बाद जब तीसरे दिन जी उठा तो और अचंबा किए कि ये तो खुद मर के भी जी उठ सकता है। उतना ही नहीं, मगर एक दिन अपनी आंखों के सामने जिसको पानी पर चलता हुआ देखा था, प्रेरितों के काम की किताब 1 अध्याय में अपनी आंखों के सामने जमीन से हवे में उड़ता हुआ देखा। और उड़ता उड़ता बाइबल का वचन कहता बादल ने उसे घेर लिया और वो चला गया, फिर उनकी आंखों से दिखने नहीं लगा। मैं आपको क्या बता रहा मालूम, इतनी सारी बातों में मैं आपको बता रहा, यीशु के कामों के प्रकाशन खत्म नहीं हुए थे, यीशु चला गया। यीशु मसीह को उन्होंने देखा क्या करता है। इसलिए यूहन्ना जब अपनी लिखाई में लिखता है 21वें अध्याय के लास्ट 25वें वचन में, तो कहता इतने काम यीशु मसीह ने किए, यदि वे लिखे जाते तो पुस्तक के नहीं समाती। सो यूहन्ना अपने प्रकाशन में, अपने लिखने में यीशु मसीह के कामों के प्रकाशनों को लिखता है। यूहन्ना अपनी पत्री में जब लिखता है, 1 अध्याय के 1 वचन में जब पत्री में लिखता है, तो यूहन्ना कहता वो जिसको हमने ध्यान से देखा, वो जिसको हमने सुना, वो जिसको हमने स्पर्श किया, उसके बारे में हम बताते हैं। तो यूहन्ना 3.5 साल जिस यीशु को कानों से सुना, आंखों से देखा, ध्यान से देखा, जिसको छुआ, उस यीशु के बारे में यूहन्ना बातें करता है। 3.5 साल की मिनिस्ट्री का यूहन्ना प्रचार करता है। याद रखना, यूहन्ना जवान था जब यीशु मसीह के साथ में था, मगर अब वर्ष बीत रहे गए यीशु के कामों के रेवलेशन को प्रीच करते करते। ध्यान से सुनिए, मगर एक दिन आता है जब 80 साल की उम्र में यूहन्ना को पकड़कर पतमुस नाम टापू पर काले पानी की सजा के लिए फेंक दिया जाता है। और अब यूहन्ना जब पतमुस नाम टापू पर है, सजा काट रखा है, ऐसे समय सडनली यूहन्ना कुछ बोलता है। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को लिखना शुरू करता है, मगर मैं आपको बताना चाहता वो कहाँ से लिखना शुरू कर रहा, क्या हो रहा है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, इसका 1 अध्याय का 9 वचन से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बने रहे, हम पढ़ेंगे, ध्यान से चलते रहे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 9 वचन से। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश हाँ? और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, हाँ परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण हाँ पतमुस नामक टापू में था। पतमुस नामक टापू में था। आगे, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। मैं परमेश्वर के दिन आत्मा में आ गया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो पतमुस का जिक्र नहीं कर रहा, पतमुस कितना खराब है वो नहीं बता रहा, मगर वो ये बता रहा पतमुस में मेरे पास आपको बताने के लिए एक स्टोरी है। मैं जो लिख रहा हूं पतमुस में मेरे पास आपको बताने के लिए एक कहानी है, और वो कहानी शुरू होती है परमेश्वर के दिन से। पतमुस में परमेश्वर के दिन की मुलाकात है। आज मैं यीशु मसीह के नाम से कहता, मैं नहीं जानता आपके लाइफ का पतमुस क्या है, आप किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, आपके हालात क्या है, मगर आज मैं यीशु मसीह के नाम से कहता, जैसे यूहन्ना के पतमुस में यहोवा के दिन ने उससे मुलाकात लिया, ऐसे आपके जीवन के पतमुस में परमेश्वर का दिन आपसे मुलाकात लेने पाए। एंड हाउ मच आई डिजायर कि आज का ये दिन जब आप वचन सुन रहे हैं ना, यही दिन परमेश्वर का दिन आपके लिए बन जाए, यही दिन परमेश्वर का दिन आपके लिए ठहर जाए। कौन सा दिन परमेश्वर का दिन होता पास्टर साहब, किसको आप कह रहे हैं परमेश्वर का दिन? ध्यान से सुनो, कौन सा दिन परमेश्वर का दिन होता, पढ़िए 10वां वचन। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। मैं परमेश्वर के दिन आत्मा में आ गया। ये वो दिन होता परमेश्वर का दिन जिस दिन परमेश्वर का आत्मा का काम बिगिन हो जाता है। जिस दिन परमेश्वर के आत्मा के कामों की शुरुआत होती है, वहां से परमेश्वर के दिन का बिगिन होता है। वाओ,
आज मैं कहता हूं परमेश्वर के आत्मा के काम आप में बिगिन होना शुरू हो जाए। आज ही के दिन से पवित्र आत्मा का एक अलग चलन आपके लाइफ में बिगिन हो। पवित्र आत्मा के रेवलेशंस आज से आपके लाइफ पर खुलना शुरू होने पाए। पवित्र आत्मा का अंडरस्टैंडिंग आप पर आज से रिलीज होने पाए। पवित्र ज्ञान का आत्मा आज से आप में काम करना शुरू करे। समझ का आत्मा आज से आप में काम करना शुरू करे। निर्णय लेने में अंडरस्टैंडिंग का आत्मा आपकी सहायता लेने पाए। आपके लाइफ के पेचीदे सिचुएशन में परमेश्वर का दिन अर्थात पवित्र आत्मा के काम आपके लाइफ में शुरू हो और आप ये जानने पाए निश्चय ये दिन परमेश्वर का दिन है, क्योंकि इस दिन पवित्र आत्मा ने मेरी बिगड़ी हुई परिस्थिति में मुझसे मुलाकात लिया है। यूहन्ना कहता है परमेश्वर का दिन आया क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ पर आया। नाउ लिसन टू मी, पवित्र आत्मा जैसे यूहन्ना पर आया, पवित्र आत्मा ने कुछ शुरू किया। जैसे यूहन्ना पर आया, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा, पवित्र आत्मा यूहन्ना पे आते बराबर उसकी मिनिस्ट्री शुरू होते बराबर क्या हुआ, पढ़िए आगे। हाँ, और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, हाँ, जो कुछ तू देखता है हाँ, उसे पुस्तक में लिख कर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं को दे दे। इसका मतलब जब परमेश्वर, जब पवित्र आत्मा यूहन्ना पर कुछ प्रकट कर रहा है तो उसके माइंड में 7 चर्चेस है। 7 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है, अर्थात कंप्लीट बॉडी ऑफ क्राइस्ट पर उसका ध्यान है। मसीह की देह कलीसिया जिसकी स्थापना प्रभु यीशु मसीह ने की, पवित्र आत्मा के आने पर पेंतिकुस के दिन हुई, उसके विषय में यूहन्ना से बात करते समय पवित्र आत्मा कह रहा, यूहन्ना जो मैं तुझे दिखाता हूं मेरी मिनिस्ट्री में, जो मैं तुझे दिखाता हूं उसको तू लिख दे। ध्यान से सुनना, जब पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री आप पर आती है वो आपकी आंखों को खोल देता है और आपको कुछ दिखाना शुरू करता है। क्या दिखाना शुरू करता, पढ़िए। हाँ, अर्थात इफिसुस और स्मुरना, हाँ, और पिरगमुन, हाँ, और थुआतीरा, हाँ, और सरदीस, और फिलदेल्फिया, और लौदीकिया को। हाँ, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था हाँ, देखने के लिए अपना मुंह फेरा, देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर हाँ, मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। आगे, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सा एक व्यक्ति को मैंने देखा। इसका मतलब सुनो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट बिगिन होता है वो आंखों को खोलता है देखने के लिए, और किसको दिखाता है मालूम, जीसस को दिखाता है। पवित्र आत्मा आंखें खोलता है और अपने आप को प्रकट नहीं करता। मुझे बड़ा ब्यूटीफुल लगता है। इवन जब मैं पेंतिकुस के दिन का स्टडी करता हूं, जिस दिन से यीशु मसीह ने कहा वो सत्य का आत्मा आएगा, जिस दिन पवित्र आत्मा आया ना, तो वो अपना इंट्रोडक्शन देने नहीं लगा, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, हेलो मैं ये हूं, मैं आपके लिए आपकी ये मदद करूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं वो चमत्कार। हाँ, पवित्र आत्मा के मुख में अपने खुद के बारे में बातें नहीं है। पवित्र आत्मा खुद का रेवलेशन रिलीज नहीं करता, मगर पवित्र आत्मा का मेन टॉपिक इज जीसस। ध्यान से सुनो, उसकी मिनिस्ट्री का केंद्र, सेंटर यीशु मसीह है। तो जब पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री हमारे लाइफ में बिगिन होती है और हम पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं, तो पवित्र आत्मा क्या करता है मालूम, हमको जीसस दिखाता है। हाउ मच आई डिजायर, आज जब ये वचन आ रहा है, पवित्र आत्मा आपकी आंखों को खोल दे कि आप यीशु को देख सके, यीशु को जान सके, यीशु को समझ सके। एक हंगर आपके अंदर क्रिएट हो जाए पवित्र आत्मा के प्रति कि पवित्र आत्मा में मुझ पर अनुग्रह करो कि मैं यीशु को जान सकूं। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ की मुलाकात पौलुस के साथ हुई ना, उस दिन से पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा ने एक हंगर से लगा दिया, और हंगर था, पौलुस कहता जियो या मरू, जो भी कुछ इस दुनिया में करूं, मेरे अंदर एक ही डिजायर है, मैं उसको जान लूं।
यीशु को जान लो, उसका मारा जाना, गाड़ा जाना, ये सारे रहस्य को मैं समझने पाऊं। क्या है उसमें भेद? यीशु को जानने की दीवानगी पौलुस के अंदर सिलक गई। बोलता मैंने दुनिया और दुनिया की चीजों को तुच्छ जाना है उसको जानने के लिए। मालूम क्यों? क्योंकि जब पवित्र आत्मा आया ना, उसने वो दीवानगी सिलगा दिया। मैं आज आपको विनती करना चाहता, ये पवित्र आत्मा सिर्फ आपको अन्य भाषा का वरदान देने के लिए नहीं आया, ये पवित्र आत्मा सिर्फ आपको परिस्थितियों पर जयवंत कराने के लिए नहीं आया, मगर ये पवित्र आत्मा आपको यीशु की पहचान देने आया। याद रखना, यीशु मसीह के दिनों में लोगों ने यीशु को पहचाना नहीं था। उसके चेलों ने, जब परमेश्वर बाप ने उन पर प्रकट किया तो वे जान गए। चेलों को जब यीशु मसीह ने पूछा लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, तो कुछ कहने लगे प्रॉफिट है, कुछ कहने लगे टीचर है, कुछ कहने लगे जरमाया है, कुछ कहने लगे एलिया है, नाना प्रकार की बातें कहने लगे। तब यीशु मसीह ने चेलों से पूछा तुम क्या कहते हो मेरे विषय में? और तब पतरस अकेले ने बोला तू तो परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीहा है। तो तुरंत यीशु ने कहा यह बात तुझ पर मांस और लहू से प्रकट नहीं हुई, मगर ये बात मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट की है पतरस। अनलेस एंड अनटिल गॉड रिवील्स यू, यीशु कौन है हम समझ नहीं सकते। दुनिया उस समय के जो यीशु मसीह को खुली आंखों से देख रहे थे वो यीशु को समझने नहीं पाए। आज कितने लोग यीशु को सिर्फ प्रॉफिट करके जानते हैं, दूसरी पुस्तकों में उसका जिक्र प्रॉफिट करके लिखा गया तो वे सोचते हैं वो प्रॉफिट ही है। मैं आपसे कहना चाहता, इफ यू वांट टू नो हु जीसस इज, यदि आपको जानना है यीशु कौन है, आपको पवित्र आत्मा के सहायता की जरूरत है, उसके मिनिस्ट्री के सहायता की जरूरत है। आपको यह कहने की जरूरत है पवित्र आत्मा हियर आई एम रेडी टू रिसीव योर मिनिस्ट्री। पवित्र आत्मा मुझ में अपनी सेवकाई को पूरा कर। और तब पवित्र आत्मा आपके अंडरस्टैंडिंग को इनलार्ज करेगा, आपके स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को इनलार्ज करेगा। बहुत सारे लोग फिजिकल लिमिटेशन में जीसस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं उसके कामों को देखकर, मगर मैं आपसे कहना चाहता फिजिकल लिमिटेशन में फिजिकल अंडरस्टैंडिंग से तुम जीसस के कामों को समझ सकते हो, जीसस को नहीं। सुनते रहो मैं जो बातें आपको बता रहा। इवन आप है ना पवित्र आत्मा के कामों को, पवित्र आत्मा के काम के चलन को फिजिकल अंडरस्टैंडिंग से समझने पाओगे, मगर स्पिरिचुअली आप नहीं समझने पाओगे अनलेस एंड अनटिल पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे समझने में। That's why it's so important मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट चर्च में रिलीज की जाए। हम ऐसे दिनों में है जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा भरमाने वाले लोग आएंगे और हो सके तो चुने हुओं को भरमा देंगे। बहुत तेरे डाइवर्स टीचिंग आ रहे, नाना प्रकार के शिक्षण आ रहे, भरमाने वाले शिक्षण आ रहे, बाइबल को तोड़ मरोड़ कर चीजें प्रेजेंट किया जा रहा। ऐसे समय में यदि हम पर्सनली इंडिविजुअली पवित्र आत्मा के मिनिस्ट्री को अलाव नहीं करेंगे ना, तो प्योर रेवलेशन हम नहीं पाने पाएंगे। दिमाग की बुद्धिमती वाली बातों से हम कंफ्यूज हो जाएंगे, मगर जब पवित्र आत्मा का प्योर रेवलेशन हमारे आत्मा में उंडेला जाएगा, जब हमारे अंडरस्टैंडिंग में उंडेला जाएगा, देन वी विल नो हु जीसस इज। इसलिए पतरस ने बड़े आसानी से कह दिया तू तो मसीहा है, मगर उसको पता ही नहीं चला उस आवर परमेश्वर ने उस पर वो रिलीज किया था। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु की ओर से आपके मेरे लाइफ पर ये रिलीज होने पाए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राइस्ट थ्रू होली स्पिरिट, यीशु की समझ पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर उंडेली जाने पाए, हमारे इनसाइड को वो खोल दे। प्रार्थना करें, जब वचन आ रहा प्रार्थना करें पवित्र आत्मा मुझे मदद चाहिए, क्योंकि बहुत से इतने ट्रांसलेशंस हो रहे, बाइबल के रियल मीनिंग्स चेंज होते चले जा रहे, रियल लैंग्वेज में जो लिखा बातें चेंज होती चली जा रही, हर एक अपने समझ के अनुसार, अध्ययन के अनुसार बाइबल को समझाता चला जा रहा। ऐसे समय में यदि पवित्र आत्मा का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, हम निशाने से भटक जाएंगे, निशाने से हट जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा हम रॉन्ग टीचिंग के पीछे कब निकले चले जा रहे हैं। मैं आपको विनती करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा को विनती करो कि मुझे तेरी मिनिस्ट्री की जरूरत है।
मुझे तेरी ओर से प्रकाशन की जरूरत है कि मैं जानने पाऊं यीशु कौन है, मैं गहराई से समझने पाऊं यीशु कौन है। वे लोग गलील के रास्तों पर यीशु को देखते थे, यीशु के आश्चर्य कर्म को देखते थे। 4 दिन के मरे मुर्दे लाजर को जब उसने जिंदा किया, ये लोगों ने आंखों से देखा, मगर बात जाकर पीछे बात करके कहने लगे क्या करे ये यीशु का। एक काम करते, लाजर को भी मार देते, यीशु को भी मार देते। यीशु के कामों को देखने के बाद भी वो जान नहीं पाए यीशु कौन है। मालूम क्यों? यीशु को खुली आंखों से देखने के बाद भी वो जान नहीं पाए। मालूम क्यों? बिकॉज दे नेवर टुक द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट। यीशु मसीह सदूकी और फरीसियों से एक दिन कहता है, ध्यान से सुनो, सदूकी और फरीसियों से कहता, तुम शास्त्र का अध्ययन करते हो और शास्त्र मेरे बारे में बातें करता है। तुम शास्त्र में जीवन को ढूंढते हो और शास्त्र मेरे बारे में बातें करता है, मगर तुम शास्त्र को समझते नहीं हो। मालूम, मैं अचंभा करने लगा, ये लोग शास्त्र का अध्ययन करते थे और यीशु कहता तुम मेरे बारे में समझते नहीं हो क्योंकि शास्त्र तो मेरे बारे में बात करता है। और मैंने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? बोले इसलिए ऐसा, बिकॉज दे नेवर टुक द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से उन्होंने कभी मदद नहीं लिया शास्त्र को समझने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता, बाइबल पढ़ने से आप यीशु को नहीं समझ जाओगे, बाइबल पढ़ने से आप बाइबल को नहीं समझने पाओगे, मगर पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री में बाइबल पढ़ने से रेवलेशन निकल कर आएंगे। देन यू विल नो रियल मीनिंग, बाइबल में क्या छिपा हुआ है, क्या गड़ा हुआ धन है बाइबल में, वो पवित्र आत्मा की सहायता से निकल कर बाहर आता है। और पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री इतनी ब्यूटीफुल है ना, वो साइंटिस्ट को भी समझा देता है और अनपढ़ को भी समझा देता है। पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं जानता, उसको भी समझ में आ जाता है। और पढ़े लिखे ज्ञानवान पंडितों को भी समझ में आ जाता है जब पवित्र आत्मा समझाता है। और यदि पवित्र आत्मा ना समझाए ना, तो पढ़े लिखे को भी कुछ नहीं समझ में आता। वो सारा उलट फेर तोड़ मरोड़ के दुनिया को गुमराह करने का काम करता है। ऐसे इसलिए कितने लोग हैं जो बाइबल में की चीजों को लेकर दुनिया को गुमराह कर रहे, कहते ऐसा नहीं लिखा है, वैसा नहीं लिखा है, ये ऐसा क्यों शब्द लिखा है। मेरे भाई, मैं कहना चाहता, थोड़ा ठहर, सच्चे दिल से एक बार पुकार और कह, पवित्र आत्मा तेरी प्रेरणा से जब बाइबल रचाया गया है, 40 ऑथरों को पवित्र आत्मा तेरे मार्गदर्शन से ये लिखाया गया है, तो मैं विनती करता, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर ये बाइबल को समझने में। मैं आपसे कहता, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, समझने का चीजें बदल जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री इज अ परफेक्ट मिनिस्ट्री। वो सत्य का आत्मा आएगा, यीशु ने कहा, और वो तुम्हें मेरे बारे में बताएगा। तो बिना सत्य के आत्मा की मदद के आप यीशु को कैसे जानने पाओगे? 3.5 साल यीशु के सीने से चिपक कर ये यूहन्ना बैठता था, आपको मालूम है। मगर 3.5 सालों में जैसा यीशु को नहीं देखा ना, अब मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट, जब यहोवा का दिन पतमुस ने उससे मुलाकात लिया और पवित्र आत्मा की ओर से आंखें खुल गई, अब जिस जीसस को देख रहा, वो 3.5 साल में कभी नहीं देखा था। 3.5 साल की सेवकाई में कभी भी उसने यीशु मसीह का ऐसा दृश्य नहीं देखा था। आप देखिए, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 1 वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 1 वचन, यानी बिल्कुल 1 लाइन जब वो लिख रहा, कहता है, यहां पर कहता है कि आत्मा उससे कहता, जो तू देखता है वो लिख दे। और अब यूहन्ना ने लिखना शुरू किया, तो 1 लाइन क्या लिखता है? हाँ, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। 1 लाइन कहता, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो ये नहीं कहता यीशु के कामों का प्रकाशन, मगर कहता यीशु का प्रकाशन। 2 अलग बातें हैं, ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता रहा। यीशु का प्रकाशन, ये यीशु कौन है, ये यीशु कैसा है, ये यीशु को क्या पसंद है, ये यीशु क्या चाहता है, यीशु मसीह का कैसा लाइफस्टाइल है, एंगर में यीशु कैसे डील करता है, यीशु मसीह जब परिस्थितियां कठिन हो जाती है तो क्या करता है, उसका प्रेयर लाइफ कैसा है। इन सारे चीजों को पवित्र आत्मा है जो उसकी देह पर रिवील करता है। पवित्र आत्मा है जो उसके बॉडी ऑफ क्राइस्ट पर, उस पर जिस पर पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री बिगिन होती है।
पवित्र आत्मा उस पर प्रकट करता है। याद रखना, जब मैं आपको बता रहा इसमें एक बात समझ जाना, पवित्र आत्मा जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। आप अनुमति देंगे तो वो काम करेगा और दिल और लगन से काम करेगा। एक पल पवित्र आत्मा वेस्ट नहीं करता। जिस दिन पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री शुरू करता ना, उसी पल से वो जीसस का इंट्रोडक्शन बिगिन कर देता है। इधर उधर की बातों में पवित्र आत्मा के पास इधर उधर लत्ते पत्ते, इधर उधर बातें नहीं है। वो डायरेक्ट स्ट्रेट पॉइंट पर आकर डे 1 से जीसस का रेवलेशन हमारे लाइफ में बिगिन करता है। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता, जीसस का रेवलेशन में आगे बढ़ते चलो। इन लास्ट डेज में पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री में जो पिता के द्वारा उंडेला गया, जीसस का रेवलेशन रिलीज होने पाए। अब सुनो, बाइबल का ये वचन कहता है कि उसने कहा, तू लिख दे जो मैं तुझसे कहता हूं, लिख दे और सातों कलीसियाओं को बता दे। क्या बता दे? सुनो, बोलता मैंने मुड़ के देखा उसको, और जब मैंने उसको मुड़ के देखा तो 7 द्यूतों के बीच में एक मनुष्य के पुत्र के समान कोई खड़ा था। सुनो सुनो सुनो, 13 वर्ष पढ़ेंगे। 13 वर्ष देखो क्या लिखा है। और उन दिवटों के बीच में हाँ, मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र का एक सदृश देखा। दिवट क्या है मालूम? आप 20वां वचन पढ़ोगे उसी पहले अध्याय का, तो कहता 7 दिवट है, 7 कलीसिया है। इसका मतलब जब यूहन्ना मुड़ के देख रहा है तो 7 चर्चेस के बीच में यीशु मसीह को देख रहा। थोड़ा उस वर्ड पर ध्यान देना, इन द सेंटर, बीच में। उसका मतलब क्या है मालूम? जब यूहन्ना को पवित्र आत्मा जीसस का रेवलेशन दिखा रहा, तो उस रेवलेशन में वो बता रहा जीसस का पोजीशन चर्च के सेंटर में है। इट मींस इन लास्ट डेज में कलीसिया को प्रभु उस जगह में लेकर आ रहा है जहां चर्च के सेंटर में जीसस है। वो चर्च के ध्यान को यहां वहां भटकने नहीं देगा, क्योंकि जो चर्च पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री में ऑपरेट होता है, वो चर्च जीसस को सेंटर रखता है। उसका सेंटर ना फाइनेंस है, ना पैसा है, ना दुनिया की बातें है, ना इधर उधर है, ना कोई डिसीजंस है, ना प्लान्स है, ना चीजें है। मैं ये नहीं कह रहा ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कह रहा ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मगर वो सेंटर नहीं है। सेंटर इज क्राइस्ट। उस चर्च का मकसद है यीशु को खुश करने के लिए हम जिएंगे। हम लोगों को खुश करने नहीं जिएंगे, कमिटी को खुश करने नहीं जिएंगे, बॉस को खुश करने नहीं जिएंगे, पास्टर को खुश करने नहीं जिएंगे, मगर हमारे लाइफ का फार मोर मकसद एक ही है, हम यीशु को खुश करने के लिए जिएंगे। जीसस इज द सेंटर ऑफ द चर्च। यूहन्ना को जब उसने दर्शन दिया और बोला लिख दे, तो बोला ये लिख, चर्च में सेंटर जीसस है। पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री में, जिस चर्च में पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री होती है, वो चर्च का सेंटर जीसस होता है। यदि आपके चर्च में यीशु सेंटर नहीं है मगर बाकी चीजें है, और यीशु को आपने कहां साइड कर दिया है पता ही नहीं है, यीशु को खुश करने वाली बातें नहीं है, बाकी सारे चर्च के धनाढ्य लोगों को खुश करना है, चर्च के बिजनेसमैन को खुश करना है, बड़ा दान देने वालों को खुश करना है, यदि ये सारी बातें है तो चर्च पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री में नहीं है, वो लोगों के मन के चलाए चलने वाला चर्च है। देखो बाइबल का वचन बहुत क्लियर कहता है, मन के चलाए नहीं चलना मगर आत्मा के चलाए चलना। ये लास्ट डेज में यूहन्ना को प्रभु बोल रहा है, चर्च वो लेवल पर मैं लेकर आऊंगा पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री में कि जीसस उसका सेंटर होगा। कौन सा जीसस? जो गलील के रास्तों पर चला, जिसके मुंह पर लोगों ने थूक दिया, जिसके पीठ पर लोगों ने पैर मारा, जिसके पीछे से तमाचा मारकर कहा भविष्यवाणी करके बता कौन है? क्या वो वाला जीसस जो शून्य बनकर इस पृथ्वी पर आया? नहीं नहीं नहीं, जो यीशु शून्य बन के आया उसके बारे में उसका दर्शन नहीं दिखा रहा, मगर यूहन्ना को ग्लोरियस जीसस का दर्शन दिखा रहा। मैं आपसे क्या कह रहा मालूम? जब पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री ऑपरेट होने लगी, यूहन्ना ऐसा यीशु मसीह को देख रहा जो 3.5 साल में नहीं देखा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं आपको बताऊं चर्च, हम सौभाग्यशाली है गलील में रहने वाले उन लोगों से 2000 साल पहले यीशु का मिरेकल पाकर भी यीशु को छोड़ के चले गए,
क्योंकि उनको यीशु के कामों का रेवलेशन था, जीसस का नहीं था। हम उससे ज्यादा प्रिविलेज्ड है क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा है जो हमको जीसस के ग्लोरियस रेवलेशन रिवील करता है, यीशु की महिमा को दिखाता है, यीशु कितना महिमावान है वो रिवील करता है। हमारे दिनों के विषय में लिखा हुआ है कि ऐसे नाना प्रकार का ज्ञान कलीसिया पर उंडेला जाएगा कि स्वर्गदूत भी उसको सुनने के लिए आएंगे। इसका मतलब इतने गहरे रेवलेशन ग्लोरियस जीसस के कलीसिया पर पवित्र आत्मा उंडेलने के लिए तैयार है। गेट रेडी, गेट रेडी, ये हमारा सीजन है, ये टाइम है। इधर उधर समय बिताने का समय नहीं है, ये हमारा समय है प्रभु कुछ करने पर है, हमारे लाइफ में पवित्र आत्मा कुछ करने पर है। ध्यान से सुनो जो मैं आपको बताता, हम पढ़ते जाएंगे, 13 वचन से पढ़ेंगे कैसे यीशु मसीह को वो देख रखा। ध्यान से सुनो। हाँ, और उन दिवटों के बीच में हाँ? मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, हाँ? जो पांव तक का वस्त्र पहने हुए पांव तक का वस्त्र पहने हुए और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। हाँ? उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के समान उज्जवल थे, सिर और बाल श्वेत ऊन और पाले के समान थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। वाह, सुनो, वो वाली वो 3.5 साल जिस यीशु की देखत से वो लिपटा रहा, अब उसके बारे में नहीं लिख रखा प्रकाशित वाक्य में, मगर नया रेवलेशन जीसस का लिख रखा। वो वाली देखा के बारे में जब लिखता था तो वो देखा के बारे में लिखता था क्रूस पर वो देखा वस्त्रहीन हो गई, मगर अब जो देख रखा महिमा के वस्त्र में ढकी हुई देख रखा। क्रूस पर जो देखा को देखा उसके पैरों में खीले ठोके हुए देखा, मगर अब जो पैरों को देख रखा है, कहता वो पैर चोखे पीतल के समान थे जो आग के भट्टे में से निकले हुए थे। क्रूस पर यीशु के सर में कांटे चुभे हुए देख रखा है, मगर अब जिस जीसस को देख रखा श्वेत उलन के समान उसके बाल गए पाले के में से निकले हुए, एक अलग ही ब्यूटी जीसस की देख रखा। मैं आपसे कहना चाहता, गेट रेडी, पवित्र आत्मा यीशु मसीह की खूबसूरती को आप पर रिवील करेगा। यू विल सी योर जीसस, उसकी सुंदरता को आप निखारोगे। क्या दाऊद ने इसके बारे में डिजायर नहीं किया? उसने कहा तेरी देवड़ी में बैठकर तेरी सुंदरता को मैं निखारता रहूं, तेरी ब्यूटी को मैं देखता रहूं। वो क्या सुंदरता है परमेश्वर की, पवित्र आत्मा रिवील करता है। वो क्या सुंदरता है जब हजारों आंखें यीशु मसीह को देख रही थी यरीहो के रास्ते पर, उनको दिखाई नहीं दी, मगर नाटे जक्कई को गुल्लर के पेड़ पे से दिखाई दे दी, और वो देखता रहा और उतर नहीं पाया नीचे, मगर देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। मैं आपको बताना चाहता, यू विल नेवर नो, आपके लोग समझ भी नहीं पाएंगे ऐसी ब्यूटी क्राइस्ट की पवित्र आत्मा आप पर रिवील करेगा, उसका नेचर, उसकी सुंदरता। और लोग बोलेंगे क्या यीशु यीशु, क्या यीशु यीशु। आप बोलोगे मैं तुमको बता नहीं सकता क्या यीशु यीशु, मैं वर्णन नहीं कर सकता क्या यीशु यीशु, मगर सुनो, मैं यीशु के बगैर रह नहीं सकता। पवित्र आत्मा वो ब्यूटी में आपको बांध देगा, वो सुंदरता में यीशु की आपको बांध देगा। आप उसके बगैर रह नहीं पाएंगे और तड़पते रहेंगे अंदर, उसके पास कब चला जाऊं, उसके पास कब चला जाऊं। इसलिए जब पौलुस पर गहरे रेवलेशन पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के रिवील होना शुरू हुए ना, एक मुखभेड़ हुआ, ज्योति चमकी और आवाज सुना, मैं वही यीशु हूं जिसको तू सताता है। वो जान गया ये कौन सा तेजोमय यीशु है जिसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना। इसलिए वो जब उसकी आंखों की खिपलियां गिर गई तो पौलुस चेलों के पास नहीं भागा, क्योंकि चेलों के मुंह से यीशु की ऐसी चमक के विषय में उसने कभी नहीं सुना। वो चेलों के पास नहीं भागा यीशु के बारे में जानने के लिए, मगर एकांत में 3.5 साल पवित्र आत्मा की संगति में चला गया और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर रेवलेशन रिवील होने लगा, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का प्रकाशन रिवील होने लगा। और तब वो पत्रियों में लिखता है, तब वो अपने लेखों में लिखता है, वो दुल्हा है कलीसिया का, वो सर है कलीसिया का। ऐसे रेवलेशन उसको यीशु मसीह के बारे में मिलना शुरू हो गए
जो किसी और को नहीं मिल रहे थे। इसलिए अपनी लिखाई में लिखने के समय कहता, परमेश्वर का ऐसा नाना प्रकार का ज्ञान हम पर उंडेला गया जो सदियों से छिपा हुआ था। तो वो सदियों से छिपा हुआ ज्ञान अब यीशु मसीह का पौलुस तुझ पर कैसे प्रकट हुआ, ये मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट में रिलीज होता है जब पवित्र आत्मा आपके इनसाइड को, अंदर मन आंखों को ऐसे खोल देता है कि आपको समझ में आने लगता है यीशु कौन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना आप पढ़ते हो इतना की नगी है। जीसस की और गहराइयां हैं, इटरनल गहराइयां। वे एंजल्स जो ऊपर उसको खुली आंखों से देखते गए उसकी महिमा में ना, परमेश्वर बाप को सिंहासन पर बैठा हुआ देखते गए, यीशु को देखते गए, घड़ी घड़ी औंधे मुंह के बल क्यों गिर जाते हैं सामने। 24 प्राचीन अपने सिंहासन पर से उठ के मुकुट निकाल के बार बार उसके सामने क्यों गिर जाते, होता क्या है। ऊपर घूमने वाले चरूबीम बार बार नीचे झुककर उसके सामने अपने मुकुट रखकर पवित्र पवित्र कहते हुए चिल्लाते रहते हैं। लाखों स्वर्गदूत आराधना करते हुए धड़ से औंधे मुंह के बल। होता क्या है, होता क्या है मालूम, एवरी टाइम दे गेट अ न्यू रेवलेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर का नया प्रकाशन रिलीज होता है, परमेश्वर का नया चीज। ही इज इटर्नल गॉड, अनलिमिटेड गॉड। पवित्र आत्मा वो इटर्नल गॉड को हमारे लिमिटेड माइंड को समझाता है। पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री में वो सुंदरता है, वो हम पर रिवील करता है। मैं आपसे कहना चाहता, देते चले जाओ, सबमिट करते चले जाओ। पवित्र आत्मा से कहो, लॉर्ड लेकर चलो मुझे, जितनी गहराई में लेकर चलना है। पौलुस घुसता चला गया, दीवानगी लग गई, इतनी दीवानगी लग गई ना कि बोला मैं तो शरीर से चला, आत्मा में तो मैं चला जाना चाहता हूं। शरीर के भाव में तुम्हारे लिए रहता हूं सुधी दुलाने, वरना मैं आत्मा में चला जाना चाहता हूं। मेरी लालसा है उसी के पास रहने की। सोचो क्या रेवलेशंस उसको जीसस के मिले कि दीवाना हो गया यीशु के पास जाने के लिए। मरने से उनको डर नहीं लगता है। जब तलवार तेज करने की बारी आई, उसका गला काटने की बारी आई, तो कलम उठा के लिख के कहता, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने विश्वास की लड़ाई लड़ा है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा है। पौलुस जो है ना, उसको टेंशन लगी गए, मरने का डर लगी गए, क्योंकि उसको मालूम है मर जाऊंगा ना तो और ग्रेटर रेवलेशन में जीसस के घुस जाऊंगा और रूबरू यीशु को देखने पाऊंगा। पवित्र आत्मा को अनुमति दिया और पवित्र आत्मा ने ब्यूटीफुल रेवलेशन उस पर रिवील करना बिगिन किया। कहता है एक आदमी न जाने आत्मा में या देह में तीसरे आसमान पर गया और ऐसी बातें देखा जो जबान पर लाना भी बराबर नहीं, समझा नहीं सकता। वाह, मैं आपको क्या बता रहा, जब यीशु मसीह का प्रकाशन बिगिन होता है, मलकी सदेक के रीति पर इब्रानी में लिखने के समय, मलकी सदेक में जब यीशु का रेवलेशन जब इब्रानी को लिखने वाले पर प्रकट होने लगा, जब यीशु का रेवलेशन उसको प्रकट होने लगा ना, तो क्या बोलता मालूम, इतनी बातें हैं मलकी सदेक के विषय में लिखने के लिए, मगर समझाना भी कठिन है और तुम्हारे लिए समझना भी कठिन है। वाह वाह, आप समझ पा रहे मैं क्या कह रहा। There is much more revelation of Christ जो पवित्र आत्मा ठहरा है रिवील करने के लिए। If only we know how to submit to the will of Holy Spirit. If we can surrender to the will of Holy Spirit and say, Holy Spirit, here I am, I desire for your revelation. मैं तेरे प्रकाशनों के लिए तैयार हूं। पवित्र आत्मा आप रिवील करो, आप प्रकट करो। मैं सबमिट करता अपनी लाइफ, अपनी सांसों को, अपनी सारी चीजों को मैं सरेंडर करता और कहता, पवित्र आत्मा मुझ पर मेरा यीशु रिवील करो, मुझ पर मेरे यीशु को प्रकट करो। मैं उसे जानना चाहता हूं, मैं उसकी मोहब्बत को समझना चाहता, मैं उसकी दीवानगी को जानना चाहता हूं, मैं उसके नेचर को जानना चाहता, वो किस तरीके से मुझसे प्यार करता जानना चाहता, वो क्या चाहता है जानना चाहता हूं। मैं हर एक बातें सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक यीशु के बारे में जानना चाहता। और मैं आपसे कहता, पवित्र आत्मा थकेगा नहीं, आपको रात और दिन उसके बारे में प्रकट करता रहेगा। रेवलेशन ऑफ जीसस, यीशु का प्रकाशन। जिन जिन लोग को बाइबल में यीशु का प्रकाशन मिल गया ना, वे दीवाने हो गए, दीवाने हो गए यीशु के। मर जाने के लिए तैयार है, यीशु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज दे अंडरस्टूड हु इज जीसस।
जिनको यीशु के कामों का प्रकाशन मिला ना, वे काम पाकर निकल गए, भाग गए, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए यीशु कौन है। मगर जिनको यीशु कौन है पता चल गया, वे हट ही नहीं सकते उससे, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा एक गहरे मोहब्बत के बंधन में वे बंध जाते हैं। उन्हें दुनिया की चीजें, दुनिया की पसंदगी से कोई लेन देन नहीं। जब पतरस ये बातें समझने लग गया तो पतरस कहता है, परदेशियों के समान ये पृथ्वी पर जीवन बिताओ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं है, परदेशियों के समान जीवन बताओ। जब बाइबल के ये हीरो समझ गए, ये कहते हैं कौन है हमारा पृथ्वी पर तेरे अलावा, और स्वर्ग में तेरे अलावा दूसरी क्या चाहत है। देखा वन थिंग इन देयर हार्ट, जीसस जीसस जीसस। ये लगन यीशु की कैसे लग गई, आप सोच के देखो। चलो उनके लिए समझ में आता जो चेले 3.5 साल यीशु मसीह के साथ साथ रहे, मगर हमने तो यीशु को देखा नहीं। आज हमारे दिनों में जो लोग रक्त साक्षी होकर यीशु के लिए मर जा रहे हैं, मगर यीशु को छोड़ते नहीं गए, उन्होंने तो यीशु को देखा नहीं है। मगर कौन सी दीवानगी उनके अंदर लग गई, यीशु के प्रति इतने दीवाने क्यों हो गए? बिकॉज पवित्र आत्मा के द्वारा उनके अंदर जीसस के रेवलेशंस रिवील किए गए, एंड दे नो हु जीसस इज। यीशु मसीह ने कह दिया, बाइबल का वचन ओल्ड टेस्टमेंट में कहता, मेरे लोग नाश होते हैं क्योंकि वो मुझको नहीं जानते हैं। और पवित्र आत्मा आया कि हम यीशु को जान ले, ताकि हम नाश ना होने पाए, हम खत्म ना होने पाए। इट्स अ ब्यूटीफुल मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा की ओर से। मालूम, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक उसको देखा, और एक भी दाग उसमें नहीं देखा, एक भी गंदगी उसमें नहीं देखा। यीशु मसीह के प्रकाशनों में एक भी गंदगी नहीं देखा। और जब कुछ भी गंदगी नहीं देखा ना, सर के बाल से पैर तक, कहता ही वॉज ग्लोरियस ग्लोरियस। और कहता सूरज जैसे पूरे वैभव में चमकता है, ऐसे उसका पूरी पर्सनालिटी थी, ऐसा वो तेजों में चमक रहा था। मैंने पूछा, यूहन्ना, ऐसा यीशु को तूने पहले 3.5 साल की मिनिस्ट्री में देखा क्या? बोले नहीं, ऐसा यीशु पवित्र आत्मा की सहायता से दिखता है, ऐसा रेवलेशन होली स्पिरिट की मदद से मिलता है। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, टेक द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट। उसकी मिनिस्ट्री की सहायता लो, वो यीशु कौन है आपको समझा देगा। आपके अंदर ही आपको समझ जाएगा, दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं, आपको पता चल जाएगा। ये ब्यूटीफुल काम पवित्र आत्मा को करने दो। मगर मैंने ये सवाल पूछा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह का प्रकाशन लिखा हुआ है, मगर यीशु मसीह के प्रकाशन में चर्च के विषय में क्यों बातें कर रहा है यूहन्ना? जब वो कहता मैंने मुड़ के देखा तो मैंने 7 दीवटों को अर्थात 7 कलीसियाओं को देखा, तो मैंने कहा आपने तो बोला यीशु का प्रकाशन है, तो फिर चर्च के बारे में क्यों आप लिख रहे हैं? आपने तो सिर्फ यीशु के बारे में लिखना था, चर्च के बारे में क्यों आपने लिखाया? पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, बेटा सुन, यीशु चर्च का सर है और चर्च उसकी देह है। जब यीशु मसीह का प्रकाशन है तो यीशु के प्रकाशन में चर्च का भी प्रकाशन है। सुनो ध्यान से, बिकॉज चर्च बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। क्या बता रहा मैं आपको मालूम? जब पवित्र आत्मा आपको जीसस का रेवलेशन देगा तो उसी रेवलेशन में वो आपको समझाएगा कि आप क्या चीज हो, आप क्या हो। क्यों मालूम? क्योंकि इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि हम यीशु मसीह में सिरजे गए, हम यीशु मसीह का भाग है, यीशु मसीह में हम बनाए गए हैं। अब ये बातें सबको समझ में नहीं आती है, ये बातें पवित्र आत्मा की अगुवाई में समझने से समझ में आती है। हम यीशु मसीह में बनाए गए, इसलिए बाइबल का वचन कहता जो गूंदा हुआ आटा है उसमें से एक लोई जो निकाले वो लोई भी उस गूंदे हुए आटे के समान है। ऐसे जब हम यीशु मसीह में से निकाले गए तो हम भी यीशु के समान थे, हम भी बिल्कुल जीसस के समान थे, मगर हम दुनिया की गंदगी में मिल गए और उन नेचर और स्वभाव और कैरेक्टर को हमने अपने ऊपर हावी होने दिया जो यीशु मसीह का नेचर और कैरेक्टर नहीं था।
इसलिए अब प्रकाशित वाक्य में जब पवित्र आत्मा यीशु का प्रकाशन दे रहा तो वो चर्च को भी प्रकाशन दे रहा और चर्च को ये बता रहा, देख तेरा यीशु कैसा है। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक तेरा यीशु कैसा है। और सोने की 7 दीवटों को दिखाकर मैं तुझे यह बता रहा कि कोयले के काले खदान में सोने की दीवट नहीं मिलती बेटा। कोयले के खदान में कोयलों से लिपटा हुआ सोना मिलता है। प्लीज ध्यान से सुनो, कोयलों से लिपटा हुआ, कोयले के दिए हुए आकार में पड़ा हुआ सोने का पत्थर मिलता है। मगर वो सोने का पत्थर जिसका आकार वहां जमीन में मिला, जब उसे आग में डाला जाता है, एक प्रोसेस में से लेके जाया जाता है, तब उसका पुराना आकार पिघल जाता है, पुराना वाला शेप निकल जाता है। और तब दीवट वाले डाय में, जो दीवट का डाय है, उसमें उस पिघले हुए सोने को उंडेला जाता है और वो पिघला हुआ सोना उस डाय में जाकर उसका आकार ले लेता है। ध्यान से सुनो। और तब वो जब कड़क हो जाता है तो वो सोना जो कोयले में था वो आकार का था, मगर अब जब डाय में आ गया तो डाय के आकार का आ गया। जब पवित्र आत्मा यूहन्ना को लोगों की भीड़ दिखाने के बजाय, क्योंकि आगे कुछ चैप्टर के बाद लोगों की भीड़ दिखा रहा है जिसके विषय में कहता कि उसकी गिनती भी करना असंभव था, इतने तादाद में लोग थे। तो मैंने बोला यहां पर आप लोगों की भीड़ क्यों नहीं दिखा रहे जब आप चर्च कहते हो उसे। प्रभु कहता अभी मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि ये प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनो, पहले चैप्टर में प्रोसेस के बारे में बात कर रहा और वो ये कह रहा, लिसन, तेरा जीसस देख कितना ग्लोरियस है, दाग रहित है, झुर्री रहित है, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक तेजोमय परमेश्वर है। मगर सुन कलीसिया, तुझे भी तेजोमय बनना है। वो दाग रहित, झुर्री रहित तेजोमय कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। मगर ये कलीसिया को वो यूहन्ना को दृश्य में बता रहा कि वो चर्च को कैसे प्रिपेयर करेगा पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री। यदि आप अनुमति दोगे, पवित्र आत्मा बता रहा, तो पवित्र आत्मा कहता जीसस को देख ले कैसा है, अब मेरी मिनिस्ट्री को अलाउ कर चर्च, ताकि जैसा तेरा यीशु है ना ऐसे ही मैं तुझको बना दूंगा। इसलिए सोने की 7 दीवटों को बताया, जिसका मतलब यह है सोने की दीवटों के लिए लैम्पस्टैंड वाला डाय है, मगर हमारा डाय यीशु मसीह खुद है, जिसके अंदर हम लाए गए हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिघाले गए और यीशु मसीह के अंदर लाए गए, ताकि हम में यीशु मसीह का आकार आ जाए, हम में यीशु मसीह की खूबसूरती आ जाए, हम में यीशु मसीह का चरित्र आ जाए। हमें जीसस के अंदर लाया गया। जैसे सोने को पिघाल के डाय में डाला जाता, ऐसे हमें यीशु में डाला गया। सोने को डाय में इसलिए डालते हैं कि उसका आकार ले ले, हमें यीशु में इसलिए डाल दिया गया ताकि हम में यीशु का चरित्र, स्वभाव, यीशु की खूबसूरती, यीशु का आकार आ जाए। और पवित्र आत्मा यह कह रहा है, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू विथ यू चर्च। यीशु का तो रेवलेशन है, मगर सुन, तेरा भी रेवलेशन मैं देना चाहता। दिस इज व्हाट यू विल बी, यदि तू मेरी मिनिस्ट्री को अलाउ करेगा। यीशु में झूठ नहीं, तुझ में से मैं झूठ निकाल दूंगा। यीशु में कड़वाहट नहीं, तुझ में से निकाल दूंगा। यीशु में जलन नहीं, तुझ में से निकाल दूंगा। यीशु में सच्ची मोहब्बत है, वो असली मोहब्बत है, मैं तुझ में से धोखेबाजी की मोहब्बत को निकाल दूंगा। लिसन, दिस इज व्हाट, सोने की 7 दीवटों को देख, ऐसा मैं तुझको बनाना चाहता हूं। ये चित्र पहले दिखा दिया, सोने की 7 दीवटे, प्रोसेस में से गया हुआ, आग में से गया हुआ कलीसिया का चित्र दिखा दिया। और फिर सेकंड चैप्टर बिगिन करता है और सेकंड चैप्टर में कहता, जिसके कान है वो सुन ले आत्मा क्या कहता है। नाउ पहले आत्मा ने यीशु को दिखाया और अब चर्च से कहना शुरू किया। क्या कहना शुरू कर रखा? 7 दीवटों वाली कलीसियाओं से कह रखा, तुझ में सब अच्छा है मगर ये एक प्रॉब्लम है, सब अच्छा है मगर ये एक प्रॉब्लम है, सब अच्छा है मगर ये एक प्रॉब्लम है। ध्यान से सुनो जो बात मैं आपको बता रहा हूं।
सब अच्छा है, ये प्रॉब्लम है, सब अच्छा है, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा यीशु मसीह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं बताया, चर्च में प्रॉब्लम बता रखा, सेम टाइमिंग में आत्मा क्यों बता रखा मालूम? क्योंकि पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री करना चाहता है। चर्च से कह रखा वो प्रॉब्लम बेटा मैं तुझे गिराने के लिए नहीं बता रखा, मगर वो प्रॉब्लम मैं तुझे बता रहा कि मैं तुझे उठा सकूं यदि उस प्रॉब्लम में तू मुझे काम करने की अनुमति देगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा एक सहायक आएगा, वो सहायता करेगा। क्या सहायता करेगा? जिस एरिया में तू वीक है उसमें तुझे बलवंत होने की सहायता करेगा। यीशु मसीह नाम का आईना तेरे सामने रख दिया और अब कहता मैं तेरी सहायता करूंगा, तू भी ऐसा दिखना शुरू हो जाए। मैं तेरी सहायता, वो एक एरिया में तू बराबर नहीं है, वो एक एरिया इफिसियो तू प्यार में कमजोर है, यीशु के प्यार में कमजोर नहीं है, तेरे प्यार में कमजोरी है। इसलिए मुझे सहायता करने दे, मैं तेरी सहायता करूंगा कि तू प्यार में ऊपर उठ सके, यीशु के समान प्यार करने वाला बन जाए। निकोलिटन की रीति पर चलते हो, तुम जिसबेल को अनुमति देते हो, बालाम की रीति पर तुम चलते हो। ओ तू ठंडा है, गुनगुना है, ओ मैं तुझसे मुंह से उंगलने पर हूं, देख तेरे बीच में बहुत थोड़े रह गए हैं, कहीं मैं तेरा दिया ना हटा दूं। नाना प्रकार की बातें बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाह रहा, मगर उन्हें उस पोजीशन में लाना चाह रहा जहां वो ये कहने पाए पवित्र आत्मा वी नीड योर हेल्प to become a perfect bride and the perfect body of Christ. चर्च, यीशु मसीह के रेवलेशन में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम उसकी खूबसूरती में ढलने के लिए अपना समर्पण करने पाए। बहुत सारी बातें हैं, आगे समय मिलेगा तो मैं आपसे बात करूंगा, मगर यहां पर मैं आज रोकना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता, जब आपको यीशु का रेवलेशन पवित्र आत्मा दे तो उसी रेवलेशन में वचन खत्म होता है। यीशु का रेवलेशन में तेज उसका कंटिनेंस था, आग की ज्वाला के समान था, वो तेज सूर्य चमकता ऐसा था, और उसके उजियाले में आपके डार्कनेस को वो दिखाएगा, उसके उजियाले में आपके अंदर की गंदगियां वो दिखाएगा। इसलिए चर्च के सेंटर में वो खड़ा है ताकि जीसस के प्रकाशन में चर्च अपने आप को क्लियरली देख सके और पवित्र आत्मा से कहे आई नीड योर हेल्प, ताकि मैं यीशु के समान कंप्लीट हो जाऊं, ताकि मैं यीशु के समान ब्यूटीफुल हो जाऊं। और पवित्र आत्मा आया ही इसलिए है कि जिसमें से हम निकाले गए हम उसके जैसे वापस होकर उसमें फिर से जोड़ दिए जाए। That is the complete work of Holy Spirit. मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, ऐसे ही लाइफ मत बिताओ, छिपाने में सफलता नहीं है, समर्पण करो पवित्र आत्मा के हाथ में और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। घमंडी मत बनो, जिद्दी मत बनो। पवित्र आत्मा से कहो यदि पतमुस में यूहन्ना के तूने मिनिस्ट्री चालू किया तो मेरे लाइफ के पतमुस में भी तू अपनी मिनिस्ट्री चालू कर और मुझे दिखा दे। क्यों दाऊद कहता मुझ में झांक कर देख, कुछ ऐसा तो नहीं, क्योंकि दाऊद के अंदर डिजायर है मैं परफेक्ट बन जाऊं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं वो परफेक्ट पवित्र आत्मा बनाना चाहता है। दैट इज हिज मिनिस्ट्री। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। पापा जो आपने मुझे दिया मैंने आपके बेटे बेटियों को दे दिया। पिताजी मैं आपसे विनती करता हूं फादर, पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री को आप रिलीज करो, अंडरस्टैंडिंग को ओपन करो लॉर्ड। लोग वचन को सुनकर चुप ना बैठने पाए, मगर पवित्र आत्मा आपकी ओर से एक बेचैनी अंदर होने पाए और पिताजी वे समर्पण करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं इंडिया के चर्चेस के लिए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए, वर्ल्ड वाइड बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए, अपर रूम चर्च के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता। जगह जगह अपर रूम चर्चेस है लॉर्ड, सारी मंडलियों के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पिताजी। पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हमारे चर्चेस में होने पाए। ओ पवित्र आत्मा, मंडलियों ने आपको दुखी किया, आप क्षमा करो, मगर आज मैं आपसे प्रार्थना करता पवित्र आत्मा प्लीज हेल्प अस टू नो जीसस, हेल्प अस टू नो हु ही इज। हमारी सहायता करो कि हम और अधिक नजदीकी करीबी से जान सके। ओ लॉर्ड इन दिनों में जीसस सेंटर होता चला जाए चर्च का, इन दिनों में जीसस की ग्लोरी कलीसियाओं में रिवील्ड होने पाए, इन दिनों में चर्च दाग रहित और झुर्री रहित बनने पाए, इन दिनों में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के डाय में कलीसिया डाल दी जाए और यीशु का आकार बनने पाए।
मैं प्रार्थना करता पवित्र आत्मा आपका काम कंप्लीट हो लॉर्ड। चर्चेस पर अनुग्रह करो कि वो राइट बातों को समझकर उसमें आगे बढ़ सके। थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे अनुग्रह दिया आपका वचन प्रचार करने के लिए, आपके हार्ट को प्रीच करने के लिए। सुनने वाले कान और जिंदगियों को ब्लेस करो पिताजी। इस वचन को जिन तक आपको पहुंचाना है आप पहुंचाओ पिता। ये प्रार्थना यीशु में आपके नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। We hope that you've been blessed by today's service. If you have any prayer requests, testimonies, or just need counseling, then our contact details are on your screen. If you would like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are on your screen. Also, I'd like to remind you that every Saturday and every Thursday at 1 p.m. शुभ संदेश टीवी चैनल पर वॉकिंग ऑन द वे नाम से हमारा शो आता है। उसे ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताएं। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे। Till then, stay blessed and stay safe. Bye.